برائلر کی کھپت کم ہونے سے قیمت میں 65 روپے کی کمی، مرغی کا گوشت ایک ہی دن میں 65 روپے سستا، مرغی کا گوشت 569 روپے سے 504 روپے کلو، انڈوں کی قیمت میں استحکام آ گیا، 289 روپے درجن کی سطح پر برقرار۔ عبد القادر سے بات کریں گے۔ عبد القادر، کیا ہو گیا آج؟ اچھی خبر ہے یقیناً 65 روپے کی کمی ایک ہی دن میں۔ آج بالکل اس کی بڑی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ برائلر جو ہے وہ عوامی قوت خرید سے باہر ہونے کی وجہ سے گزشتہ 4-5 روز سے اس کی سیل جو ہے بری طرح متاثر ہو رہی تھی، کیونکہ خریداروں کی جانب سے برائلر کا جو ہے وہ بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اب کھپت کم ہونے کی وجہ سے سپلائی میں بہتری دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کی وجہ سے برائلر کی قیمتیں غیر معمولی طور پر 65 روپے فی کلو تک کم کی گئی ہیں، اور گزشتہ روز برائلر کی قیمت 569 روپے فی کلو تھی اور آج 504 روپے فی کلو مقرر کی گئی۔ اسی طرح زندہ برائلر کی قیمت 45 روپے فی کلو تک کم کی گئی۔ ہول سیل زندہ برائلر 328 اور پرچون بازار میں زندہ برائلر جو ہے 336 روپے فی کلو مقرر کیا گیا ہے۔ سرکاری ریٹ لسٹ جو آج جاری کی گئی ہے اس کے مطابق برائلر کی قیمت 65 روپے فی کلو تک کم کی گئی، اور اسی طرح انڈوں کی قیمتیں جو ہیں وہ مستحکم رکھی گئی ہیں۔ 289 روپے فی درجن کی سطح پر انڈے جو ہیں وہ آج برقرار رکھے گئے ہیں، اور اسی طرح انڈوں کی پیٹی 8,550 روپے کی مارکیٹ میں مقرر کی گئی ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ برائلر اب بھی جو ہے وہ زائد قیمتوں پر فروخت کیا جا رہا ہے، سستا ہونے کے باوجود عوامی قوت خرید میں نہیں آ سکا ہے، اور 504 روپے فی کلو فروخت کیا جا رہا ہے، جبکہ یہی برائلر جو ہے وہ 300-350 روپے فی کلو تک مارکیٹ میں فروخت کیا جاتا تھا، جسے مسلسل مہنگا کر کے جو ہے 550 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچایا گیا تھا۔ تاہم اب جو ہے اس کی قیمتوں میں کمی ہونے لگی ہے، اور شہریوں کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ جب تک اپنی اصل قیمت واپس نہیں آئے گا تب تک اس کی خریداری نہیں کی جائے گی، جبکہ جو برائلر کے ٹریڈرز ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ برائلر مہنگا ہونے کی وجہ سے جو اس کی سیل ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ تقریباً 50 سے 60% تک سیل جو ہے پرچون سیل جو ہے وہ کم ہو چکی تھی، کیونکہ شہریوں کی جانب سے برائلر کی خریداری کم کی گئی تھی، جس کے باعث اب جو برائلر ہے وہ سستا ہونے لگا ہے۔ آج ڈیمانڈ کم اور سپلائی زیادہ ہونے کی وجہ سے برائلر کی قیمت 504 روپے فی کلو اچھا عبد القادر، اگر پیداوار کی بات کی جائے تو خاص طور پر جو خام مال باہر سے آنا تھا، جس طرح کینولا کی بات کریں تو ابھی بھی تقریباً 5 جہاز ان لوڈڈ ہیں، ایک جہاز صرف ان لوڈ ہوا، باقی ابھی ہونے ہیں، تو ابھی انتظار کیا جا رہا ہے کہ کراچی سے جو خام مال ہے وہ کلیئر ہو، اور پھر تاکہ فیڈ کی جو پروڈکشن ہے اس میں اضافہ ہو اور یہ سپلائی چین بہتر ہو۔ جی بالکل، جو پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کا وفاقی حکومت کے ساتھ فیڈ کی جو درآمد ہے اس حوالے سے جو ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے، اور اب جو فیڈ کنولا آئل اور سویابین آئل جو کراچی پورٹ پر پھنسا ہوا تھا اس کی ریلیز جو ہے وہ کرنا شروع کر دی ہے، لیکن اس کے ثمرات یا اثرات جو ہیں وہ آئندہ ماہ میں آئیں گے، کیونکہ جو نئی جو برڈ ڈالا جائے گا یا نئی برائلر جو ہے اس کی جب پیداوار کی جائے گی تو اس میں یہ فیڈ استعمال ہوگی، اور موجودہ مارکیٹ کی صورتحال جو ہے وہ ابھی تو جون کی تو رہے گی۔ کھپت کم ہونے پر جو ہے قیمتیں کم ہوں گی، لیکن اگر کھپت کم ہونے کے ساتھ برائلر فارمرز کی جانب سے سپلائی بھی کم کی گئی تو قیمتیں ایک بار پھر تیز ہونے کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آگے بڑھیں گے، بات کریں گے اہم معاملے کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کے اعتماد کے ووٹ کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت آج ہوگی۔ نون لیگ نے اپنے اراکین کو عدالت پہنچنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے بعد اراکین کو ہدایت کی گئی کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں کیس کی سماعت کے موقع پر موجود ہوں گے اور عدالتی کارروائی سنیں گے۔ سماعت ختم ہونے تک تمام اراکین اسمبلی عدالت میں موجود رہیں گے۔ اس کے علاوہ اراکین اسمبلی کو لاہور میں ہی مقیم رہنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ اراکین اسمبلی سماعت کے بعد اسمبلی پہنچیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کی بات کریں تو پنجاب اسمبلی میں دوسرے دن بھی ہنگامہ برپا، ایوان مچھلی منڈی بنا رہا، ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگ گئے۔ اپوزیشن نے اسمبلیوں کی سیڑھیوں پر بھی احتجاج کیا۔ اجلاس کے بعد رانا ثناء اللہ واپس گئے تو نامعلوم شخص نے ان کی گاڑی پر جوتا اچھال دیا۔ لیاقت علی کی رپورٹ۔ پنجاب اسمبلی کے اجلاس کے آغاز میں ہی اپوزیشن کا جارحانہ انداز رہا۔ اپوزیشن نے ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگائے۔ ایوان اعتماد کا ووٹ لو، اعتماد کا ووٹ لو کے نعروں سے بھی گونجتا رہا۔ ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ کر اپوزیشن ڈیسک بجاتی رہی۔ ڈاکو 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 ووٹ لو، ووٹ لو، ووٹ لو۔
अपोजिशन रुकन खलील तार सिंधु की अवान में नुक्ता एतराज़ पर तलख कलामी भी हुई। अक़लियती रुकन सैमुअल यकूब को डांट पिला दी। हुकूमती रुकन चॉइस ज़हीरुद्दीन ने अपोजिशन पर कड़ी तनकीद की तो अपोजिशन के एहतजाज में शिद्दत आ गई। राना मशहूद का कहना था कि रूल्स की धज्जियां उड़ाकर कानून साजी की जा रही है। अपोजिशन अरकान की कसीर तादाद ने स्पीकर डाइस के सामने एहतजाज किया। हुकूमती रुकन ज़हीर अब्बास खोखर ने राना सनाउल्लाह पर तनकीद करते हुए कहा कि एक जराइम पेशा शख्स मेहमान गैलरी में बैठा है। मियां महमूद रशीद ने भी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान पर कड़ी तनकीद की। शोर शराबे में स्पीकर ने पहले 15 मिनट और फिर बुध के रोज 3 बजे तक इजलास मुलतवी कर दिया। इजलास के बाद अपोजिशन ने असेंबली की सीढ़ियों पर भी एहतजाज किया। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह वापस हुए तो उनकी गाड़ी पर जूता उछाल दिया गया। लीगी हलकों की जानिब से इल्जाम आयद किया गया कि जूता पीटीआई के रुकन राजा राशिद हफीज के ड्राइवर ने मारा है। जूता उछालने के वाक़े पर राजा राशिद हफीज ने इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि उनके ड्राइवर ने ऐसी कोई हरकत नहीं की। कैमरामैन उमैर इसके साथ लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। गवर्नर पंजाब की बात करेंगे। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि वज़ीर आला पंजाब ऐवान में एतमाद खो चुके हैं, इसलिए आइनी हक इस्तेमाल करते हुए एतमाद का वोट लेने का पाबंद किया। मुख्तलिफ डेलीगेशन से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि सियासी मामलात को अदालतों में ले जाना और उन्हें सियासी सूरत हाल में उलझाना बेजवाज़ है। स्पीकर के इक़दामात इख्तियारात की तकसीम के उसूल की नफ़ी है। एतमाद के वोट से बचने के लिए वज़ीर आला अदालत को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही कम अददी अक्सरियत से हुकूमत कर रहे हैं। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे पास 186 वोट है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की पंजाब असेंबली में मीडिया से गुफ्तगू बोले, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की मदद की। ये मुल्क डिफ़ॉल्ट की बातें करने वालों के मुंह पर तमाचा है। डॉलर नीचे आएगा और महंगाई की शरह में भी कमी होगी। इनको ये मालूम हो चुका है कि इनके पास नंबर नहीं है, इनके पास नंबर नहीं है और ये एतमाद का वोट जो है वो नहीं ले सकते। पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के जो है वो साथ खड़ी है। इससे डॉलर भी सस्ता होगा, महंगाई भी जो है वो दूर होगी और जब महंगाई दूर होगी तो लोगों की नाराज़गी भी जो है वो दूर होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बाद सरबराह तहरीक इंसाफ की बात करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि अदालत ने कहा तो एतमाद का वोट लेंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है, साजिशों से नहीं घबराएंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकज़ी क़यादत, पंजाब की सीनियर लीडरशिप और डिवीजनल कोऑर्डिनेटर्स का इजलास ज़मान पार्क में हुआ। इजलास में सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी, एजाज चौधरी, उस्मान बुज़दार और दीगर ने शिरकत की। इजलास में एतमाद के वोट के मामले पर कोऑर्डिनेटर्स ने रिपोर्ट पेश की। हर कोऑर्डिनेटर्स ने अपनी अपनी डिवीजन के अरकान से राबतों पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को असेंबली में पार्टी की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफ किया गया। उन्हें बताया गया कि गुज़श्ता रोज़ हुकूमती अरकान ने 21 बिल पास करवा कर अपोजिशन को एक बार फिर असेंबली में शिकस्त दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के बगैर ना तो दहशतगर्दी और ना ही इकॉनमी ठीक हो सकती है। चौधरी परवेज़ इलाही के पास 188 अरकान पूरे हैं। अदालत के फैसले के बाद आइंदा की हिकमत अमली बनाएंगे। लियाकत अली की रिपोर्ट। ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना था कि मुल्क में इस वक्त दहशत गर्दी में इजाफा और मईशत तबाह हो रही है। पीडीएम ने 5 MPs के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपए की ऑफर की। चौधरी परवेज इलाही को 188 MPs की हिमायत हासिल है। अदालती फैसले के बाद हिकमत अमली का ऐलान करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे मुजफ्फरगढ़ और कोटद्दू के MPs साहिबान मौजूद हैं। कल हमारा जो इजलास हुआ और आज जो हमारा नंबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह 188 के ऊपर है। पीडीएम की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 MPs के लिए ऑफ़र किया गया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफ़र्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। फवाद चौधरी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के अलावा हर काम करने के लिए तैयार है। वारंट गिरफ्तारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। जो बेड़ा इलेक्शन कमीशन ने गरक किया है कि जो एक ही काम है उनका कि वो इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन करवाने के अलावा हर काम करने को तैयार है। जब भी आप उनसे पूछे वो कहते हैं हम तैयार नहीं हैं। और इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मेंबरान के ज़रिए आज जो वारंट जारी करवाया उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हम तौहीन अदालत में जा रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर
मेंबरान के खिलाफ जिन्होंने आज का ये वारंट जो है वो जारी किया। इससे पहले जमान पार्क में इमरान खान की जेर सदारत पार्टी रहनुमाओं और पंजाब की तमाम डिवीजन्स के कोऑर्डिनेटर्स का इजलास हुआ। इजलास में एतमाद के वोट के मामले पर रिपोर्ट पेश की गई। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अताउल्लाह तारड़ कहते हैं वज़ीर आला पंजाब एतमाद का वोट लेने से गुरेजा है। कल हुकूमती इत्तेहाद के 140 मेंबर्स ऐवान में आए। हमारे अरकान की कुल तादाद 177 थी। पंजाब हुकूमत धांधली से अपने नंबर्स पूरे करना चाहती है। तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादी काफ लीग वालों से पंजाब असम्बली में नंबर पूरे नहीं हुए और इस वक्त जो कल हमारी तादाद थी 177 थी, 177। इनकी तादाद 140 कल नहीं टाप सकी और वो नाम भी हमारे पास हैं कि इनका कौन सा मेंबर जो है कल हाउस में नहीं आ सका। हद भी अगर ये पूरा जोर लगा लें तो वो 160 165 से ऊपर नहीं जाती। पंजाब असम्बली में वज़ीर आला के एतमाद के वोट का मामला अमल को शफाफ बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मुतालबा कर दिया। सलमान तारिक की रिपोर्ट। नून लीग और पीपल्स पार्टी पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसकी सदारत ख्वाजा साद रफीक और राना सनाउल्लाह ने की। अताउल्लाह तारड़ और हसन मुर्तजा समेत अपोजिशन इत्तेहाद के 152 अरकान शरीक हुए। इजलास में करारदाद पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि एतमाद के वोट के लिए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर की बजाय अपोजिशन की मुशावरत से गैर जानिबदार मेंबर की सरबराही में इजलास बुलाया जाए। अमल को शफाफ बनाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर करे। ज़राए के मुताबिक इजलास में लीगी क़यादत ने तमाम अरकान को पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की है। लीगी अरकान के 15-15 अरकान पर मुश्तमिल ग्रुप बनाकर एक एक लीडर मुकर्रर कर दिया गया, जबकि तमाम अरकान को वज़ीर आला एतमाद का वोट लें के भरपूर नारे लगाने की भी हिदायत की गई। कैमरामैन सलीम के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है, फ्री कैंट जिम्मेदारी निभाएं। वफाकी हुकूमत अकेले इस्तेहकाम नहीं ला सकती। अवाम की बेहतरी के लिए सियासतदानों और इदारों को एक पेज पर आना होगा। नुमान नूर की रिपोर्ट। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक एहतसाब अदालत में पेश हुए। ख्वाजा साद रफीक ने पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, फ्री कैंट जिम्मेदारी निभाएं। वफाकी हुकूमत अकेले इस्तेहकाम नहीं ला सकती। सियासी और नजरियाती इख्तलाफात के बावजूद हम मिलकर काम कर रहे हैं। कोई भी माइनस नहीं हो सकता। इंसान माइनस अपने कामों की वजह से ही हो सकता है। तो जब तक सियासी इस्तेहकाम आना है तो उसके लिए तो सियासी इत्तफाक़ राय करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ। और वो बातचीत जो है, अगर आप मुल्क को वाकई चलाना चाहते हैं और इसको मुश्किलात से और अजाबों से और बहरानों से निकालना चाहते हैं, तो सिर्फ सियासी जमातें नहीं, फिर पाकिस्तान की अदलिया को, इस्टेब्लिशमेंट को और सारी सियासी क़यादत को एक नुक्ते पर आना पड़ेगा। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि अवाम की बेहतरी और मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए सियासतदानों और इदारों को एक पेज पर आना होगा। सियासी और नजरियाती मुखालिफ रहे हैं, नजरियाती तौर पे आज भी एक दूसरे के साथ इत्तफाक तो नहीं है, सियासी तादी ज़रूर है आज। तो आप किसी को फांसी लगा के या जेल में डाल के या डिस्क्वालीफाई करके पॉलिटिकली माइनस मेरा ख्याल नहीं कर सकते। पॉलिटिकल सपोर्ट मौजूद रहती है। माइनस आदमी अपने करतूतों से ही होता है, किसी के किए से नहीं होता, तकलीफ जरूर आती है। एहतसाब अदालत ने ख्वाजा बरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग रेफरेंस पर कार्रवाई नैब के वकील की जानिब से मोहलत मांगने पर 23 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। कैमरामैन बाबर के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत से रजू करेंगे। इस तरह के फैसलों से सियासी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा। उनका मज़ीद कहना था कि असल में इस मुल्क में अवाम के मैंडेट की तौहीन हो रही है। तो ये एक लिस्ट जारी करें कि किस किस की तौहीन करना जो है इस मुल्क में जुर्म है और क्या क्या कहें तो तौहीन हो जाती है। जिसकी बात करें वो कहते हैं जी फलाने की तौहीन हो गई, पहले बीच में तौहीन IMF भी हो गई थी और आप कह रहे हैं तौहीन इलेक्शन कमीशन हो गई है। इसी तरह अदालतें जो हैं वो बुनियादी हकूक़ से ज़्यादा तौहीन अदालत के ऊपर कई हमने देखा माजी में गौर करती रही हैं। लोगों की तौहीन हो रही है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, लोगों के मैंडेट की तौहीन हो रही है। हमें इस वक्त इसका सोचना चाहिए और मईशत का सोचें, इन चीज़ों से बाहर निकलें। 20 किलो आटे का थैला बंद करके 10 किलो वाली सप्लाई तेज़ करने की पॉलिसी भी कारगर साबित न हो सकी। शहर में सस्ते आटे की किल्लत बदस्तूर बरकरार। अवाम ने कहा हुकूमत आटे जैसी बुनियादी ज़रूरत ही पूरी करने में नाकाम है। आटे की किल्लत से मुश्किलात बढ़ रही है।
सस्ता आटा नायाब, महंगा आटा दस्तयाब। मार्केट में पंजाब हुकूमत की स्कीम के तहत सस्ता आटा बदस्तूर किल्लत का शिकार। फ्लोर मिल्स की निजी गंदम का 15 किलो आटे का थैला 2150 रुपए में फरोख्त हो रहा है। खुला आटा 145 रुपए फी किलो है। मार्केट में चक्की आटा 160 रुपए फी किलो में मिल रहा है। खरीदार सस्ते आटे की अदम दस्तयाबी के बायस परेशान, एक से दूसरी दुकान के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। अवाम कहते हैं सरकारी स्कीम का सस्ता आटा आता तो है, लेकिन इंतहाई कम सप्लाई होती है। हर शहरी को सस्ता आटा दस्तयाब नहीं। हुकूमत बुनियादी जरूरत आटे की दस्तयाबी भी मुमकिन नहीं बना पा रही। आटा जो है बुनियादी ज़रूरत है और वही शार्ट है, दुकानों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और नहीं मिलता। हर दुकान का रेट एक से जो है दूसरे का वो मुख्तलिफ है। 20-25 थैले आते हैं, 200-250 बंदा होता है यहाँ पे। लाइन लग जाती है, तकरीबन 150 थैला होता है, 300 आदमी होते हैं। आटा तो सस्ता लभदा नहीं फिलहाल। अगर हुकूमत जो आटा सस्ता भेजती है, वो बड़ी हद तक 30 या 40 थैले भेज देंगे आ, 100 बंदे की लाइन लग जाती है। वाज़ेह रहे पंजाब हुकूमत की जानिब से 20 किलो आटे का थैला बंद करके 10 किलो आटे के थैले की सप्लाई बढ़ाई गई, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई में फ़र्क ख़त्म नहीं हो सका। कैमरामैन उमैर फजल के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। आपको ये बताएं कि गंदम की किल्लत ने सस्ते आटे के मुतलाशी सार्फिन को ख्वार कर दिया। सस्ता आटा न मिलने के बायस ज़रूरतमंद आम मार्केट से महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। बहरान के हल की इंतजामी कोशिशें तेज़ कर दी गई। जो गरीब है बेचारा, वो इतनी उसकी सैलरी नहीं है जितने का बेचारे का आटा निकल जाता है। 1000 रुपये का अगर नोट हो और 800 रुपये का आपको 5 किलो आटा मिलता है, ये गरीब बंदा कैसे खाए? इस वक्त लाहौर की आम मार्केट में बेशतर सूरतों में 15 किलो आटे का थैला ही दस्तयाब है, जिसके निर्ख कमोबेश 2000 रुपए तक पहुंच चुके हैं। चक्की आटा 160 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है, तो सस्ता आटा स्कीम के तहत सारिफीन को 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में मिलता है। कीमत का यही वो फर्क है जिसका फायदा हासिल करने के लिए जरूरतमंद जगह जगह सस्ते आटे की तलाश में मारे मारे फिरते दिखाई देते हैं, लेकिन कामयाबी की कोई जमानत नहीं है। 5-6 स्टोर उधर हैं, 5-6 इधर फिरा हूँ, कहीं पे आटा नहीं मिला। अब मजबूरी में आके मुझे 160 रुपये किलो के हिसाब से जो है ना वो चक्की का आटा लेना पड़ रहा है। 2080 रुपए का 15 किलो आटे का थैला लेके जा रहे हैं। इधर आटे वाले भी नजरे करम करो। करार दिया जा रहा है कि हुक्काम पंजाब में गंदम की जरूरत का बर वक्त तखमीना ही न लगा सके। पंजाब ने वफाक से पहले 5 लाख टन गंदम फराहमी का मुतालबा किया और फिर 10 लाख टन गंदम की डिमांड की। वफाकी हुकूमत ने सिर्फ 5 लाख टन गंदम ही फराहम की, और वो भी किसी हद तक ताखीर से। इसी चक्कर में जहाँ आम मार्केट में गंदम और आटे के निरखों में बेमुहाबा इजाफा हुआ, तो वहीं सस्ता आटा स्कीम पर इसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब हुए। गो हालात में बेहतरी की नवीद तो सुनाई गए हैं। 3.5 लाख आटे के बैग्स जो हैं वो रोज़ाना सप्लाई किए जा रहे हैं, और अभी हमने 106 ट्रकिंग पॉइंट्स शहर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर सेटअप किए हैं, जिनका मकसद ये है कि जहाँ पर आबादी ज़्यादा है और जहाँ डिमांड ज़्यादा है वहाँ पर आटे की किसी किस्म की शॉर्टेज जो है वो ना होने पाए। इसके अलावा हम अब इसकी रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट्स ले रहे हैं। चंद दिनों में ये सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाएगी। उम्मीद रखी जानी चाहिए कि सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। वो कहा जाता है ना कि रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज। मुश्किलें मुझ पर पड़ी इतनी के आसान हो गईं। सो इन दिनों तो हर हवाले से कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने को मिल रही है, लेकिन जब आटे जैसी इंतहाई बुनियादी ज़रूरत का हसूल भी मुश्किल तर हो जाए तो फिर हालात की संगीनी का अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं रह जाता। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर। महंगाई आसमान से बातें करने लगी। सब्जी और फलों की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो गई। प्याज 260 रुपये, टमाटर 90 रुपये और अदरक 460 रुपये फ़ी किलो। अरवी 140 रुपये फ़ी किलो, सेब 350 रुपये फ़ी किलो, जबकि केला 140 रुपये फ़ी दर्जन फ़रोख्त किया जा रहा है। अब्दुल कादिर से बात करेंगे। जी अब्दुल कादिर। बिल्कुल, आज अगर मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो सब्जियों के जो आज सरकारी नरखनामे जारी किए गए हैं उसमें 5 सब्जियां महंगी की गई हैं। प्याज आज 7 रुपये महंगा करके 225 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में दर्जा अव्वल का म्यारी प्याज जो है 260 से 270 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। इसी तरह जो लहसुन है उसकी कीमत में गुज़िश्ता रोज़ भी इजाफा किया गया था, आज मजीद इजाफा कर दिया गया। 10 रुपये का इजाफा करके 350 रुपये सरकारी रेट लिस्ट में कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही लहसुन जो है 420 से 440 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक की कीमत में आज तीसरे रोज भी इजाफा किया गया। अदरक 20 रुपये महंगा करके 400 रुपये फी किलो सरकारी रेट लिस्ट की आज कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन अदरक की फरोख्त जो है वो 400 के बरक्स 460 से 480 रुपये फी किलो तक की जा रही है। ये बुनियादी जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिला। हर हंडिया का लाजमी जुज़ है जो कि हरे मसाले जिसमें प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक शामिल है। इसी तरह सब्ज़ मिर्च का तड़का जो है वो भी महंगा हो चुका है।
10 रुपए महंगा करके 110 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में आज 110 के बरक्स सब्जियां जो है 140 से 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा किया गया उसमें करेले 5 रुपए महंगे करके 115 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन अब मार्केट में करेले 140 से 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। बैगन 53 के बरक्स 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह बंद गोभी जो है 19 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 40 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। शलजम जो है 25 के बरक्स 40 रुपए फी किलो तक, इसी तरह शिमला मिर्च 70 के बरक्स 100 रुपए फी किलो तक शहरियों को फरोख्त की जा रही है। अरबी 100 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन फरोख्त 140 रुपए फी किलो तक। मटर 80 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में मटर जो है 100 से 110 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। 3 फल आज महंगे किए गए हैं जो सरकारी नजरनामे जारी किए गए, उसमें केला दर्जा अव्वल 5 रुपए महंगा करके 105 रुपए कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में 140 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह केला दर्जा 2 में 68 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन दर्जा 2 का केला मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और मौसमी आज 5 रुपए महंगी करके 130 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन 130 के बरक्स 250 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त की जा रही है। अनार बेदाना 20 रुपए महंगा करके 540 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन 540 के बरस अनार की फरोख्त जो है मार्केट में 730 रुपए फी किलो तक की जा रही है। अमरूद 74 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन अमरूद की फरोख्त मार्केट में 100 से 110 रुपए फी किलो तक की जा रही है। और शहरियों का ये कहना है कि सरकारी नजरनामे रोजाना सुबह जारी किए जाते हैं, लेकिन रोजाना ही इन पर अमल दरामद नहीं किया जाता। कीमतों में इजाफे के बावजूद सरकारी नजरनामों पर अमल दरामद न होने से शहरी दुगना महंगाई का सामना कर रहे हैं। तो अब्दुल कादिर, ये बताइए गए सारी सूरत हाल में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ज़िला इंतज़ामिया की बात करें, वो उम्दा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम है। हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट या कमेटियाँ जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्राम फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ तो करती हैं, लेकिन इन कार्रवाइयों के समरात जो हैं वो आम सारिफ या गरीब शहरी तक नहीं पहुँच पाते। जुर्माने और मुकदमात का इंदराज किया जाता है, लेकिन मामला जो है वो जूं का तूं ही दिखाई दे रहा है। और जो सरकारी नजरनामों पर अमल दरामद ना होने का सिलसिला है वो शहर की होलसेल और सब्ज मंडियों से शुरू होकर शहर की परचून मार्केटों की हर दुकान तक फैला हुआ है, लेकिन इस पर जो अमल दरामद है वो यकीनी नहीं हो पा रहा है। जी शुक्रिया, आपने अपडेट किया। महकमे खुराक पंजाब ने गंदम के गोदामों के मुंह खोल दिए। फ्लोर मिल्स का गंदम का पूरा कोटा फराहम कर दिया गया। ओपन मार्केट में गंदम 600 रुपये सस्ती, फी मन कीमत 4200 रुपये। महकमे खुराक पंजाब ने दावा किया कि 2 रोज़ में गंदम और आटा बहरान खत्म हो जाएगा। महकमा खुराक पंजाब ने गंदम के गोदामों के मुंह खोल दिए। सूबे में 970 फ्लोर मिल्स की 26,000 मैट्रिक टन गंदम रिलीज कर दी गई। लाहौर डिवीजन को 7,302 मैट्रिक टन गंदम कोटा जारी किया गया है। शहरी लाहौर में 87 फ्लोर मिल्स को 6,055 मैट्रिक टन गंदम फराहम की गई है। इससे कबल गंदम कोटा 4,902 मैट्रिक टन दिया जा रहा था। मार्केट में 10 किलो आटे के थैलों की तादाद 3,43,000 से बढ़ाकर 4,24,000 कर दी गई। गंदम कोटा रिलीज होने से ओपन मार्केट में गंदम 4,200 रुपए फी मन पर आ गई। आटे की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए DFC और असिस्टेंट कमिश्नर्स ने क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया। 109 मजिस्ट्रेट्स, तहसीलदार और पटवारी स्टोर्स पर तैनात। महकमा फूड के अफसरान ने मजंग अड्डा ट्रक पॉइंट का दौरा किया और मुख्तलिफ इलाकों के स्टोर्स पर आटे की दस्तयाबी को भी चेक किया। अवाम का कहना है कि हवारी के बाद आटा मिल रहा है। हुकूमत को आम आदमी बारे सोचना चाहिए। आटा हर स्टोर पे हो तो लोग ना भागे ना दौड़े, मिलता है लेकिन उतनी मजदूरी नहीं होती जितना महंगा आटा है। डिप्टी डायरेक्टर फूड मिसेस नईम अफजल का कहना है कि शहर में गंदम और आटा वाफिर मौजूद है। पहले हमारे 1700-1800 पॉइंट थे, लेकिन अब हमने आटे का जब से थोड़ा सा मसला शुरू हुआ है हमने इसकी तादाद 2000 से ऊपर कर दी है। एज सच लाहौर में इस तरह का कोई मसला नहीं है। लाहौर में वाफिर आटा है, आपको हर जगह पे नजर आएगा। सेक्रेटरी फूड नादिर चट्टा का कहना है कि मार्केट में गंदम की डिमांड के खिला को पुर करने के लिए मजीद 2 रोज लगेंगे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से सख्त मॉनिटरिंग, बेज़ाब्तियों में मुलविस फ्लोर मिल्स इंतज़ामिया को शोकॉस नोटिस जारी कर दिए गए। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर 1 ने MS बादामी बाग फ्लोर मिल की चेकिंग की। दौरान चेकिंग बादामी बाग फ्लोर मिल्स में बेज़ाब्तियाँ पाई गई। फ्लोर मिल्स मुकर्रर करदा कोटे से कम मिकदार में आटे के थैले की मार्केट में सप्लाई कर रही थी। गाड़ी बाजार में भेजी लेकिन रसीद मौजूद ना थी। फ्लोर मिल्स में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम पाए गए। फ्लोर मिल्स गवर्नमेंट की हिदायत की खिलाफ वर्जी कर रही थी। शोकॉस नोटिस का जवाब देने तक फ्लोर मिल्स में गंदम का कोटा मुअत्तल रहेगा। महंगाई ने ज़िंदगी का पहिया चलाना मुश्किल बना दिया। अशिया खुरनोश के बाद कपड़े और बर्तन धोना भी महंगा पड़ेगा।
मुख्तलिफ ब्रांड के सर्फ और साबुन महंगे हो गए। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट। सफाई करने वाली चीजों पर भी महंगाई का धब्बा लग गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के सर्फ और बर्तन धोने वाले साबुन महंगे हो गए। सर्फ के फी किलो पैक की कीमत 51 रुपए तक बढ़ गई। मुख्तलिफ कंपनियों का 1 किलो सर्फ का पैकेट 499 से बढ़कर 550 रुपए का हो गया। कपड़े धोने वाले लोकल साबुन की कीमत 20 रुपए तक बढ़ गई। लोकल साबुन की कीमत 200 से बढ़ाकर 220 रुपए तक कर दी गई। बर्तन धोने वाले लॉन्ग बार की कीमत में 3 रुपए इजाफा, नई कीमत 57 रुपए मुकर्रर। ब्रांडेड लिक्विड सोप की 475 ml की बोतल 30 रुपए महंगी हो गई। शहरी कहते हैं हुकूमत को अवाम और मुल्क का कोई ख्याल नहीं। रोज बरोज महंगाई ने सफाई सुथराई रखना भी मुश्किल बना दिया है। डेली बेसिस पर जो है ना वो कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। ये जालमाना इकदाम है। इनकी अपनी इक़्तिदार की जंग लड़े, इनको कोई परवाह नहीं कि कौम किस हालत से गुजर रही है। काफ़ी बजट में फ़र्क पड़ गया। पहले जो चीज़ 1000 में आती थी अब 2000 में वो मिल रही है, 1500 में मिल रही है। काफ़ी ज़्यादा रेट का फ़र्क पड़ गया है यहाँ पे। ये सुन के इंतहाई अफसोस की बात है कि आज का दिन इंतहाई गरीबों के लिए अफसरदा दिन है, क्योंकि आज के दिन सर्फ साबुन और घी और ज़रूरियाती अशिया की इतनी चीज़ें में कि गरीब की पहुंच से बहुत दूर चली गई हैं। शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुअस्सर इक़दामात किए जाएं। कैमरा टीम के हमरा अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। लोड शेडिंग की बात करें तो शदीद सर्द मौसम में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू हो गया। शहरियों को गैस बहरान से भी छुटकारा न मिल सका। मौसम सरमा में भी गैस और बिजली की बिला तातुल फराहमी यकीनी ना बनाई जा सकी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया व गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को हुकाम के मुताबिक 500 मेगावाट बिजली की कम फराहमी जारी है, जबकि फ़नी खराबियों के बायस भी मुतादिद इलाके बिजली से महरूम रहने लगे। दूसरी जानिब गैस की बंदिश के बायस भी शहरियों को मुश्किलात का सामना। डॉलर की कदर में मज़ीद इजाफा हो गया और रुपये की गिरती कदर को संभाला ना मिल सका। ओपन मार्केट में डॉलर की किल्लत बदस्तूर मौजूद। मंगल के रोज़ डॉलर 47 पैसे मज़ीद महंगा, जिससे इंटरबैंक डॉलर रेट 227 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर में 25 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद ओपन मार्केट में डॉलर रेट 237 रुपये जारी किया गया। लेकिन अक्सर मकामात पर डॉलर की महंगे दामों फ़रोख्त जारी है। लाहौर के मास्टर प्लान के बारे में आपको बताएं। लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर के मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने ताहुक्म सानी मास्टर प्लान पर अमल दरामद रोक दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के बेमकसद मनसूबों से सांस लेना मुश्किल हो गया। ऐसे मनसूबों से मुल्की इकॉनमी को भी खतरात लाहक हैं। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट में लाहौर के मास्टर प्लान 2050 के खिलाफ दरखास्त। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी मियां अब्दुल रहमान की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त में मास्टर प्लान 2050 को चैलेंज किया गया। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मास्टर प्लान अदालती हुक्म के बरक्स रूडा अदारा बनाकर नाफिज कर दिया गया। मास्टर प्लान के तहत न सिर्फ दरख्त काटे जाने का खदशा है, बल्कि माहौलियाती तबाही भी आएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत के बेमकसद मनसूबों से सांस लेना मुश्किल हो गया है। ऐसे मनसूबों से मुल्की मईशत को भी खतरा दरपेश हैं। अदालत ने दरखास्त पर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने रमज़ान शुगर मिल्स को 2 दिन में NOC जारी करने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने रमज़ान शुगर मिल्स की दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें अदालती अहकामात के बावजूद NOC जारी न करने के इक़दाम को चैलेंज किया गया। जस्टिस शाहिद करीम का DG एक्साइज के ताख़ीर से पेश होने पर इजहार बरहमी बावर कराया कि जजेस सुबह आ सकते हैं तो आप क्यों नहीं आ सकते। DG एक्साइज ने माजरत की और कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। अदालत ने इस्तिफसार किया कि अदालती फैसले पर अमल क्यों नहीं कर रहे, क्या कोई ज़ाती इशू है। सरकारी वकील ने इस्तदा की कि अदालती फैसले पर अमल दरामद के लिए मोहलत दी जाए, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। दरखास्त में कहा गया है कि सियासी बुनियादों पर लाइसेंस जारी नहीं किया जा रहा। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 76 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादलों के अहकामात जारी किए। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एडिशनल सेशन जज इजाज़ अहमद को फैसलाबाद से आरिफ वाला, एडिशनल सेशन जज तारिक महमूद को पत्तों की, अदनान तारिक को मुल्तान, एडिशनल सेशन जज मोहम्मद आसिफ को शेखपुरा, यासिन मोहल को झंग, जबकि दीगर जजेस को पंजाब के मुख्तलिफ अजला में तैनात कर दिया गया। पंजाब हुकूमत लाहौर पर मेहरबान। वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर के 3 मेगा प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रख दिया। चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ शुरू से ही 2 नंबर हैं। इमरान खान पर हमले के पीछे जो असल लोग हैं वो जल्द पकड़े जाएंगे। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट।
पंजाब हुकूमत का शहर लाहौर को 20 अरब रुपए से जायद का पैकेज। समनाबाद के मुकाम पर संग बुनियाद रखने की तकरीब का इनेकाद किया गया। गुलशन रावी, टी जंक्शन, बंद रोड, समनाबाद अंडरपास और समनाबाद क्रिकेट स्टेडियम का संग बुनियाद रखा गया। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि तमाम मेगा प्रोजेक्ट्स 1 साल के अरसे में मुकम्मल होंगे। आगे नून लीग नजर नहीं आएगी, सिर्फ पीटीआई नजर आएगी और हमारे काम नजर आएंगे। इमरान खान साहब भी खरे और सच्चे आदमी हैं और इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान की जो बेहतरी के कदम उन्होंने उठाए हैं, ये तो एक फ़ेज़ है और ये फ़ेज़ जो है जब ख़त्म होगा आपको नज़र आएगा कि नून लीग कहीं नहीं आगे चल के नज़र आएगी किसी को, और सिर्फ पीटीआई नज़र आएगी और काम हमारे नज़र आएंगे। सीनियर सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना था कि सियासी तौर पर मुल्क में खरीदो फरोख्त का अमल जारी है। शरीफ और जरदारी फैमिली पाकिस्तानी सियासत को गंदा कर रही है। अभी लोग 85 के जख्म भूले नहीं, 85, 88, 90, 93, 96 जो गंद ये करते रहे हैं, जितना इन्होंने गंद किया है, जितने इन्होंने यहाँ पे मेले मवाशियाँ लगाए हैं, जितने इन्होंने खरीदो फरोख्त का अमल किया है, और पाकिस्तान की सियासत को गंदा करने में नवाज फैमिली का और जरदारी फैमिली का हमेशा से हाथ रहा है। साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि संजीदगी के साथ मुल्क की मईशत को देखना होगा। अभी समझने की ये ज़रूरत है कि हमारा माशी मसला ये जो 8 अरब डॉलर की ये बात कर रहे हैं कि हमें फंड्स मिले, इनसे हल नहीं होगा। हमें संजीदगी के साथ अपनी माशी पॉलिसी को दोबारा देखना पड़ेगा असर नौ से। DGLDA आमिर अहमद खान ने यकीन दिलाया कि तरक्याती मंसूबे बर वक्त मुकम्मल किए जाएंगे। लाहौर के नज़रअंदाज इलाकों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने बुला के स्पेशली हिदायत की थी कि मैं लाहौर के इलाके, स्पेशली जो लाहौर के रईस इलाके नहीं, लाहौर के जो इलाके जो कम तरक्की याफ्ता उनकी तरक्की के लिए मैं चाहता हूँ कि हम हर मुमकिन कोशिश करें और स्कीम्स लेके आएँ। रवां हफ्ते शाहदरा प्रोजेक्ट का संग बुनियाद और सगिया मंसूबे का इफ्तिताह भी किया जाएगा। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब हुकूमत शहर लाहौर में मज़ीद मेगा प्रोजेक्ट शुरू करवाने के लिए एक्टिव। वज़ीर आला पंजाब 2 मज़ीद मनसूबों के इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। शहर में मज़ीद 2 मनसूबों का संग बुनियाद और इफ्तिताह करने का प्लान बना लिया गया। वज़ीर आला पंजाब इतवार के दिन शाहदरा के अवाम के लिए बड़े तोहफे का ऐलान करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही शाहदरा मल्टी लेवल ग्रेड सेपरेशन मनसूबे का संग बुनियाद रखेंगे। शहर के दाखिली वखारी रास्ता सगिया रोड के 2 पैकेजेस मुकम्मल होने पर भी इफ्तिताह किया जाएगा। लाहौर की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट की आखिर सुनी गई। 17 साल के बाद सड़क की तामीर व बहाली मुकम्मल। कमिश्नर लाहौर ने ऑटो मार्केट का दौरा किया, मरम्मत व बहाली का जायजा लिया। शहर में अक्सर व बेशतर टूटी और उखड़ी सड़कों की सूरत हाल में अच्छी खबर यह है कि 17 साल के तवील इंतजार के बाद सर्कुलर रोड से मुल्हका ऑटो मार्केट की सड़क की तामीर व बहाली मुकम्मल हो गई। सड़क से पक्की इंक्रोचमेंट खत्म करवाकर 15 फुट सड़क वसी की गई। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने ऑटो मार्केट का दौरा किया और सड़क की मुरम्मत व बहाली का जायजा लिया। साथ ही अंदरूनी सड़कों की भी तामीर और सीवरेज काम का जायजा भी लिया। ताजरों ने सड़क की तामीर व बहाली को सराहा। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर का कहना है कि 1 किलोमीटर मेन रोड तामीर की गई। ऑटो मार्केट में तजावुज़ात को ताजरों की मदद से 100% ख़त्म कर दिया गया है। हम इनकी ऑटो मार्केट एसोसिएशन के बहुत शुक्रगुजार हैं। मुकम्मल तावन किया, बल्कि ख़ुद इनिशिएटिव लिया और मुझे कहा गया कि यहाँ से आप इंक्रोचमेंट ख़त्म करें और बिला तफरीक ख़त्म करें। उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखेंगे वाकई इतनी चौड़ी रोड है कि इस पर कोई ट्रैफिक का इशू नहीं होगा। कमिश्नर लाहौर के हमरा CEO सैयद अली अब्बास बुखारी, CO इंफ्रास्ट्रक्चर आमिर भट्ट और अमीर अली समेत ताजरों की कसीर तादाद मौजूद थी। वासा अफसरान ने सरकारी ख़जाने के इस्तेमाल में कवानीन पामाल कर दिए। माली साल 2019-20 में होने वाली बेज़ाब्तियों पर ऑडिटर जनरल के एतराज़ात सामने आ गए। मुख्तलिफ शोबाजात ने करोड़ रुपए की अदायगियाँ कवानीन को बलाए ताक रखते हुए कर दी। वासा में मुबैना तौर पर माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ, ऑडिटर जनरल के एतराज़ात सामने आ गए। वासा के गैर मुतमईन जवाब पर केस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को इरसाल कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2019-20 में शोबा P&S ने नीलामी ना करके खजाने को 4 करोड़ 97 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया। सोडियम खरीदने के लिए 41,99,000 रुपए की खिलाफ ज़ाब्ता अदायगी की गई। शटरिंग की मद में होने वाली अदायगियों में ठेकेदार को नवाजा गया। खिलाफ कानून 52,94,000 रुपए की जायद अदायगियाँ की गईं। गंजबख्श टाउन ने 72,90,000 रुपए की खिलाफ कानून अदायगी की। वासा रावी टाउन ने 21,92,000 रुपए अदायगियों की वजाहत न दे सका। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने वासा इंतजामिया को तलब कर लिया।
کمشنر لاہور شہر میں پارکنگ پلازے کی تعمیر کے لیے سنجیدہ ہو گئے۔ آفس فائل ورک مکمل کرنے کے لیے 9 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ شہر میں بے ہنگم ٹریفک کے خاتمے کا پلان تیار۔ کمشنر لاہور پارکنگ پلازے کی تعمیر کے لیے ایکٹیو ہو گئے۔ ڈائریکٹر فائنانس کمشنر آفس کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی۔ ڈینگی کی روک تھام اور افزائش روکنے کا پلان۔ ڈی جی پی ایچ اے کے احکامات پر پارکس میں فواروں کی صفائی کا عمل شروع۔ جیلانی پارک، گریٹر اقبال پارک، گلشن اقبال پارک، باغ جناح، اسٹیشن پارک اور فیملی پارک سمیت دیگر پارکوں میں صفائی کا عمل جاری ہے۔ ڈی جی پی ایچ اے ذیشان جاوید نے کہا کہ ڈینگی سے بچاؤ کے لیے پارکوں میں ہر ممکن اقدامات کر رہے ہیں۔ ڈینگی کی روک تھام ہمارا قومی فریضہ ہے۔ پارک میں پانی کی نکاسی اور صفائی کے حوالے سے کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ سوئی ناردرن کمپنی میں نجی گاڑیوں کے ڈرائیورز اور مالکان کے مطالبات کے حق میں دوسرے دن بھی احتجاج۔ نجی گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیورز نے احتجاجاً تمام ریجنز میں کام بند کیا۔ گلبرگ آفس کے باہر کمپنی انتظامیہ کے خلاف نعرے لگائے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے زیر اہتمام چلنے والی نجی گاڑیوں کے مالکان اور ڈرائیورز کا احتجاج جاری۔ ریٹ نہ بڑھانے پر مالکان اور ڈرائیورز نے گلبرگ آفس کے باہر دوسرے روز بھی شدید احتجاج کیا اور تمام ریجنز میں احتجاجاً کام بند کر دیا۔ کام بند ہونے کے باعث ایمرجنسی اور ڈیولپمنٹ کے تمام کام ٹھپ ہو گئے۔ مظاہرین نے گرو مانگٹ روڈ بلاک کر کے انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی کے تمام ریجنز میں سینکڑوں گاڑیاں رینٹ پر لی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ایمرجنسی، نیو کنیکشن اور ڈیولپمنٹ سمیت دیگر ٹیموں کے زیر اہتمام چلنے والی گاڑیاں کانٹریکٹر کے ذریعے ہائر کی جاتی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کی بات کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں موجودہ حالات بد انتظامی اور کرپشن کے باعث ہے۔ اسمبلی پر اخراجات کے لیے کروڑ روپے ہے لیکن عوام کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام سید مودودی انٹرنیشنل کانفرنس کا دوسرا روز ایک شام ناظم اعلیٰ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق سمیت دیگر رہنما شریک ہوئے۔ امیر جماعت اسلامی کا کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود آٹے سے محروم ہے۔ موجودہ حکمرانوں کی نااہلی کے باعث مہنگائی بڑھ رہی ہے۔ مسائل وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے۔ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف 60 سالوں میں ایٹمی پاور بنایا تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 5 دریاؤں سے نوازا، معدنیات سے نوازا، زرعی زمینوں سے نوازا۔ اس کے باوجود بھی پاکستان کے عوام 1 کلو آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہیں۔ یہ تمہاری بد انتظامی اور کرپشن کی وجہ سے۔ کانفرنس کے مندوبین نے مولانا مودودی کی دینی و سیاسی خدمات پر روشنی ڈالی۔ پروگرام کے افتتاحی کلمات ناظم اعلیٰ جمعیت پاکستان شکیل احمد نے پیش کیے۔ پنجاب میں لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر میں 2 سال کا اضافہ کیا جائے۔ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس نے قانون میں تبدیلی کی تجویز دے دی۔ نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس کی پنجاب میں لڑکیوں کی شادی کی قانونی عمر 2 سال بڑھانے کے لیے پنجاب حکومت کو قانون میں ترمیم کی تجویز میں کہا گیا ہے کہ عمر 16 سال سے بڑھا کر 18 سال کی جائے۔ کمیشن نے کہا کہ عمر کو UN کنونشن آن چائلڈ رائٹس کے مطابق کیا جائے۔ کمیشن نے پنجاب حکومت کو کہا کہ اقلیتی قیدیوں کے لیے ان کا دینی نصاب طے کر کے نوٹیفکیشن جاری کیا جائے۔ کمیشن میں پنجاب کے ممبر ندیم اشرف کا کہنا ہے کہ اس وقت پنجاب میں مسلم قیدیوں کے لیے اسلامیات کا نصاب موجود ہے جس کو پڑھنے کے بعد ان کی سزا 6 ماہ کم ہو جاتی ہے۔ یہ سہولت دیگر مذاہب کے قیدیوں کو بھی ملنی چاہیے۔ ہمارے پاس جیل کے ریمیشن کے حوالے سے بھی شکایت آئی کہ ہم صرف جو